Hello friends, in this lecture we are going to start about function. In previous lecture we have studied about relation. What is relation? You know very well. What is the definition of relation? Yes, if A and B are two non-empty sets, so each and every subset of A cross B is called relation from A to B. If A has two elements and B has three elements, then A cross B has 2 3s are 6 order pairs. So A cross B has 6 elements. So number of subset of A cross B is equal to 2 raised to 6. So there are 64 subsets of A cross B, right? So we can say there are 64 relations are possible from A to B, right? All relations are not a function, but some of them may be function. So number of relations are 2 raised to n, but number of functions or which kind of relation is called function we have to learn in this lecture. तो यहाँ पर मैं पहले डेफिनेशन समझा देता हूँ. Let A and B are two non-empty sets. If A subset of A cross B and F is equal to not null set, तो ये दो कंडीशन तो पहले फुलफिल करनी ही पड़ेगी. F is subset of A cross B. Every subset of A cross B is called relation. So A is one kind of relation, right? Because F is subset of A cross B and F is equal to not null set. So null set मतलब empty set is not a function. Empty set is not a function. Empty set is one kind of relation, but empty set is not a function. Right? A relation from set A to set B. A relation F from set A to set B is said to be a function. A relation from a set A to set B, because we have taken two sets A and B. So a relation from set A to set B is said to be a function if every element of set A, every element of set A has unique image in set B. A relation from set A to set B is said to be a function. This particular type of relation is called a function. A relation from set A to set B is said to be a function if every element of set A has unique image. This word is most important in this definition. Set A has unique image in set B. The function f from A to B is known as or is denoted by A to B.
This relation is called a function, and it is denoted by function from A to B. Function is denoted by small f, small g, small h. There are so many symbols, but in this case we have taken small f. Function f from A to B, so A to B. A is the first set and B is the second set. A is called domain and B is called codomain, but in next lecture we will understand the definition of domain and codomain. Now A and B are two non-empty sets, so A is the first set, B is the second set. F subset of A cross B and F never null set. ये दो कंडीशन है, और तीसरी जो मेन कंडीशन है, every element of A has unique image in set B. That is the most important condition, unique image, right? यहाँ पर मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ. For example, A is equal to suppose 1, 2, 3 and B is equal to 2, 3, 4 and 5. A has 3 elements, B has 4 elements, so there are 12 elements in A cross B. Find A cross B. 1, 2, 1, 3, 1, 4 and 1, 5. There are 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. 3, 1, sorry, 3, 2, 3, 3, 3, 4 and 3, 5. You can see here there are 12 order pairs in A cross B. Because A has 3 elements, B has 4 elements, so number of A cross B is equal to 12. 3 4s are 12, and so 12 order pairs in A cross B. Right? A cross B में 12 elements है, 12 order pairs है. तो आप समझ सकते हैं कि A cross B की अगर हम सबसेट फाइंड करना चाहते हैं तो 2 raised to 12 हो जाएंगे. 2 is multiplied by 10, 12 times. इतने सारे मेंबर्स A cross B का सबसेट हो जाएंगे. हमें A cross B के सबसेट तो अभी नहीं फाइंड करना है क्योंकि बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मैं एक रिलेशन पर्टिकुलर यहाँ बनाता हूँ वो आप देखिए. फंक्शन A मतलब रिलेशन A to B when fx is equal to suppose x plus 1. fx is defined as x plus 1. Now put the value of x from A, 1, 2 and 3, 1 by 1. It is 1, so 1 plus 1, answer is 2. Second, put x is equal to 2, so 2 plus 1, answer is 3. Now put 3 from A, 3 plus 1 and answer is 4. 2, 3 and 4. If we are putting x, then the value of fx is called y. This is x and this is y. Right? x, y. Order pairs. So f is equal to 1, 2, 2, 3, second order pair and 3, 4. आप देख सकते हैं कि एक में सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर्स है, सिर्फ 3. राइट? कितनी ऑर्डर पेयर्स है? सिर्फ 3. तो जो मेरी पहली कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी? मतलब द फर्स्ट कंडीशन एफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. आप देख सकते हैं कि कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होती है या नहीं. नहीं होती तो बता देना. यस, दिस इज ए क्रॉस बी and all order pairs of A are in A cross B. So A is subset of A cross B. देख सकते हैं.
1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, राइट। तो यहां पर F is subset of A cross B। डेफिनेशन की पहली जो कंडीशन मैंने लिखी है वो फुलफिल हो जाती है। दूसरी कंडीशन के बारे में तो कुछ बताने लायक है ही नहीं, क्योंकि F is not null set, यहाँ पर होना चाहिए, F not null set नहीं है, तो ये भी फुलफिल हो गया। तीसरी बात जो मैंने बताई है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है। एवरी मतलब एक का कोई भी सेट मेंबर एलिमेंट यहां पर नहीं आया है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 2 3। सो एवरी एलिमेंट ऑफ A is associated with the element of B and it is a unique relation। देखिए 1 के साथ 2 का रिलेशन है, 2 के साथ 3 का रिलेशन है और 3 के साथ 4 का रिलेशन है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। इट इज ए यूनिक रिलेशन। आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। ए बी में कौन से एलिमेंट्स है? 2 3 4 5, 2 3 4 and 5। Now 1 is corresponding with 2, 2 is correspond with 3 and 3 is corresponding with 4। So each and every element of A is associated with the element of B, right? कोई भी एलिमेंट A का सेट, A का कोई भी एलिमेंट एसोसिएशन में बाकी नहीं है। Each and every element is associated with the element of set B, right? और दूसरी बात, A का कोई भी एलिमेंट एसोसिएट नहीं होता है अगर, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा। मान लीजिए 3 के साथ कोई भी एलिमेंट अगर नहीं मिलता B में, तो ये फंक्शन नहीं बन पाता। फंक्शन बनने के लिए कोई भी रिलेशन तो हो जाता है, लेकिन फंक्शन बनने के लिए ये कंपल्सरी है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A should be associated with the set, the element of set B। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं एसोसिएट होता है तो फंक्शन नहीं बन पाता। लेकिन B का कोई भी एलिमेंट अगर एसोसिएट नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये नहीं मानना चाहिए कि B का B हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन के लिए सिर्फ इतनी बात ही काफी है कि F subset of A cross B, F is equal to dot null set and each and every element of set A has unique image। मतलब 1 is corresponding with 2, but 1 is not corresponding with 3, 1 is not corresponding with 4। 1 मतलब सिर्फ एक एलिमेंट से में से एक ही एरो निकलना चाहिए। मैं सीधी बात बताता हूँ आपको, ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें से एक से ज्यादा एरो स्प्रेड हो। सिर्फ एक ही एरो स्प्रेड होना चाहिए, एक ही एरो निकलना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि फंक्शन है। तो ये यूनिकनेस है, ये आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट? तो ये मैंने बताया। अब एक दूसरी बात देख लीजिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फंक्शन कोई भी ऑर्डर पेयर है, ये F is denoted as a set of order pairs, right? F में आप क्या दिख सकते हैं? F में आपको क्या दिखाई पड़ता है? F में 3 ऑर्डर पेयर दिखाई पड़ता है, 1 2 and 3। तीनों ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट आपको चेक कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सेकेंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट इज 2,
थर्ड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट इज 3, सो द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज डिफरेंट। अगर फर्स्ट एलिमेंट एक से ज्यादा ऑर्डर पेयर में आ गया तो भी ये फंक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि यूनिकनेस नहीं रहेगी ना, यूनिक होना चाहिए, यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फंक्शन है या नहीं वो डिसाइड करने के लिए, कि जब फंक्शन, मान लीजिए मैं एक आपको देता हूं f इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 4 3 7 2 एंड 6 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑर्डर पेयर है और तीनों ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट है। तीनों ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट है। अगर फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है तो ये फंक्शन है क्या, कि ए बी यहाँ पर कोई दिया नहीं है, जो ए बी मतलब कोई सेट दिया नहीं गई है, तो डायरेक्टली ये ऑर्डर पेयर के हिसाब से हमें ये फंक्शन है या नहीं वो नक्की करना है, वो तय करना है, तो हम कैसे तय कर सकते हैं। अच्छा, f इज इक्वल टू, तो ये फंक्शन है, मान लीजिए ऐसा है 4 1 5 1 6 1, तो ये भी फंक्शन है। why? Because first element is different in each and every order pairs, right? फर्स्ट एलिमेंट ये डिफरेंट होना चाहिए। दूसरे वाला एलिमेंट है जो y है, x y, जो y है वो रिपीट अगर हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी फंक्शन है। और फंक्शन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल 3 5 3 7 2 7 2 6, यहाँ पर क्या दिक्कत है कि जो दो ऑर्डर पेयर ऐसी है 3 5 एंड 3 7, इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है, बस यही दिक्कत है। तो जो यूनिकनेस है उसका वायलेंस होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं बन पा रहा है। ये रिलेशन है जरूर, लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए कंडीशन बहुत ही क्लियर है कि फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज डिफरेंट इन ऑल ऑर्डर पेयर्स, और सेकंड एलिमेंट में भी रिपीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन थी, और अब हमने जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन, बहुत सारे रिलेशन में आपको पहले बताऊंगा, और उस रिलेशन में से कौन से वाले रिलेशन फंक्शन बन पाएंगे वो आपको मैं क्लियर कट बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में।